Good morning students. Now our next topic is Biot-Savart law. Before starting Biot-Savart law, let us have a look on the previous topics we have studied. Earlier we have studied about the Oersted experiment. In the Oersted experiment, what we have studied, that whenever a current is flowing in the wire, magnetic field is developed around the wire. So each moving charge, this is the conductor, each moving charge produces a magnetic field at a point P. As each moving charge produces a magnetic field at a point P. So as the conductor consists of large number of charges, so the total magnetic field at a point is due to the sum of the contributions of these charges at a point. ठीक है, ये सभी इन चार्जेस का इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, हम अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इन सभी चार्जेस का जो टोटल इफेक्ट होगा वो क्या करेंगे, ऐड करके निकालेंगे. सो व्हाट Biot and Savart did, instead of dealing with the infinite number of charges, instead of dealing with the infinite number of charges in the conductor, what they did, they divided the wire into small elements. These elements are known as current element. What they did, they divided the wire into small elements, and that elements were known as करंट एलिमेंट. क्या नाम दिया उसको, उन छोटे छोटे टुकड़ों को करंट एलिमेंट. ठीक है, तो पहले समझिए करंट एलिमेंट होता क्या है. करंट एलिमेंट मीन्स अ स्मॉल एलिमेंट कैरिंग करंट एंड दैट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट. It is the product of current and small length of the conductor carrying current. It is a vector quantity. It is a vector quantity. ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, इट इज द टेंजेंट टू द एलिमेंट. इट इज द टेंजेंट. जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं तो करंट कहाँ होगी, सपोज मान लेते हैं कि करंट ऐसे है. ठीक है, तो ये हो गया आपका dl. तो इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द एलिमेंट. इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द एलिमेंट. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द Biot-Savart लॉ. अब Biot-Savart लॉ जी क्या है कि कोई भी वायर है आर्बिट्रेरी शेप का, ऑल्दो दिस Biot-Savart law is applicable for the small current carrying conductors, but it can be applied to long conductors also. Okay, so let us consider a small element dl which is carrying a current I. So suppose if we want to calculate, अब ये छोटा सा एलिमेंट है dl, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, कैसा निकालेंगे डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल. यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा. तो इस सपोज करो कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये आता है यहाँ पर, सपोज करो कि ये एंगल है इसके बीच में थीटा, और ये r डिस्टेंस पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस छोटे से एलिमेंट के कारण. अब एलिमेंट छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी, छोटी आएगी. तो dB इज द स्मॉल एलिमेंट विच इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो इट इज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट the small magnetic field produced at a point is directly proportional to I, directly proportional to dl, directly proportional to sin theta, directly, this is inversely proportional to 1 by r square. So this is experimentally found. So by combining all these factors, magnetic field at a point is found to be I dl sin theta upon r square. This is the proportionality. Okay.
whenever a proportionality sign is removed, certain constants will come. So dB is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught c square I dl sin theta upon r square. So see, 1 upon epsilon naught c square is equal to how much? Mu 0. So dB is equal to mu 0 upon 4 pi into I dl sin theta upon r square. In terms of vectors, so mu 0 upon 4 pi I dl cross r upon r cube. This is the mathematical form of the Biot-Savart law. Biot और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर ये लॉ दिया था कि किसी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर, ठीक है। अगर टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे? वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो, बायोट-सावर्ट लॉ को अलग अलग फॉर्म्स में भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे बायोट-सावर्ट लॉ समझ में आ गया ना। फर्स्ट चीज क्या है, अगर टोटल इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है। सेकंड पॉइंट, अगर बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अब ये सभी को पता है करंट डेंसिटी क्या होता है? J. इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। सो I, अगर मैं dl और dl नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? सो I dl तो वैसे ही रहेगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? dv वॉल्यूम। तो देखो बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्म क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या होता है? I, ये क्या था? dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब था। तो अब क्या फॉर्म हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई I, अब ये I dl के जगह पर क्या आ जाएगा? j dB, तो j क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ का जो फॉर्म हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तीसरा, बायोट-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। सो मैं जानता हूँ I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन dt लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, I dl को आप ऐसा लिख सकते हो Q अपॉन dt इंटू dl, सो Q इंटू v, ठीक है। इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। सो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई, देखो I dl की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? चार्ज इंटू वेलोसिटी, सो Q बाहर आ जाएगा, v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। सो ये है वेक्टर फॉर्म में चार्ज और वेलोसिटी के टर्म्स में। अब देखो बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में और कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। सो देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज आर देयर इन द बायोट-सावर्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले समझते हैं सिमिलरिटीज क्या होती है इसमें, बायोट-सावर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में सिमिलरिटीज। सो पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। दोनों क्या है? लॉन्ग रेंज है। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे लिखते हैं ना 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, और वहाँ भी कूलम्स लॉ क्या था? फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, दोनों इनवर्स
इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। उसके बाद देखो जी डिसिमिलैरिटीज क्या है। डिसिमिलैरिटीज क्या दोनों में अंतर है? देखो जी यहाँ पर बायोट-सावर्ट लॉ में जो करंट एलिमेंट है, जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, वो वेक्टर है, और वहाँ पर जो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? चार्ज, जो कि स्केलर है। ठीक, दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये एंगल डिपेंडेंट है बायोट-सावर्ट लॉ, और कूलम्ब्स लॉ क्या है? एंगल इंडिपेंडेंट है। सो ये था सब चीज़ बायोट-सावर्ट लॉ के। ठीक है, थैंक यू।